Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers। आज हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 3 पेज नंबर 103 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 103 ऑफ योर बुक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो हमने पीछे 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उन तमाम चैप्टर्स का एक रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि हमें सॉल्व करना है। Who is the inventor of bulb? Thomas Edison invented bulb. What was the peacock doing? He was dancing in a fun way. Why do we use first aid box? It is a quick way to give someone a medical treatment at home or at school or office. Arrange the given words in alphabetical order and write their parts of speech in their notebook. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, लॉजिक, फाइट, ब्राइट, फेम, हैन एंड सॉफ्टली। आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली यानी कि ए बी सी इस ऑर्डर से अरेंज करना है और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आएगा ब्राइट, फेम, फाइट, हैन, लॉजिक एंड सॉफ्टली। नाउ लेट मी टेल यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दीज वर्ड्स। लॉजिक इज एन एडजेक्टिव, फाइट इज अ वर्ब, ब्राइट is an adjective, fame is a verb, hen is a noun, and softly is an adverb. Write a short dialogue between two persons to agree, disagree politely on a specific topic of your own choice. आप बच्चों को एक टॉपिक दीजिए कि एक बात कोई एक मुद्दा लीजिए, इस पे एक बच्चा जो है वो राजी हो और दूसरा बच्चा उससे डिसअग्री करे और इस बारे में एक डायलॉग डिस्कशन करें, लेकिन बहुत सॉफ्टली, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का आंसर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज फोकस, राइट मीनिंग्स टू द गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक। रोर, a deep sound by a lion. Inventor, one who invents something. Rumors, gossip, doubtful truth. Cure, heal, playful, mischievous. Read each action word. Write the inflectional ending for each word in your notebook. ये हमारे पास action word दिए गए हैं, laugh, walk, want, open. रिकॉल करते हैं इन्फेक्शनल एंडिंग्स क्या होती हैं, यानी कि एक वर्ड के साथ आपने SES, ED और ING लगाना है। लाफ का बात करते हैं, बात laughs, laughed और laughing. Walks, walked and walking. Want, wants, wanted and wanting. इसी तरह open, opens, opened and opening. Change the given past tense according to the given instructions. यहाँ पे कुछ past tense दिए गए हैं, इनको instructions के according हमने change करना है। The gardener watered the plant. इसको negative form में अगर हम करेंगे, the gardener did not water the plant. The baby did not cry. Affirmative में अगर हम इसको convert करेंगे, the baby cried. He whispered something. Interrogative. Did he whisper something? And then question mark. We left the house. इसको negative में convert करेंगे, we did not left the house. Filling the blanks with possessive adjectives to complete the sentence. Where is dash classroom? We can't find it. Where is our classroom? He, she, it, our, you, me, mine, their, ये सब क्या हैं हमारे पास? Possessive adjectives हैं, ये हमने इसमें fill करने हैं। I think this is dash book. He dropped it some cut. He dropped it here mistakenly. I think this is his book. This is a picture of my father. He is also dash best friend. This is a picture of my father. He is my best friend. Moving on to the next page. Writing skills. Write a few descriptive lines for the given picture. जिस तरह हमने देखा डिस्क्रिप्टिव लाइंस क्या होती हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में लिखिए और जुमले जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हों। एक जुमला किसी और डायरेक्शन में और दूसरा किसी और डायरेक्शन में ना जा रहा हो, बल्कि आपके तमाम थॉट्स और आइडियाज़ किसी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। यहाँ पे अगर हम एक तस्वीर की बात करें तो कुछ बच्चे एक पौधे के पास जो हैं वो खड़े हैं और एक बच्ची जो है वो पौधे को पानी दे रही है और दूसरा बड़े हैरानगी से उसको देख रहा है। इसकी क्या पिक्चर बनेगी, पिक्चर स्टोरी बनेगी? The girl is watching their plants producing leaves. There is another activity. Look at the given picture graph and answer the following questions. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है, इनको देखते हुए सवालात के जवाब दीजिए। सबसे पहले आपके लेफ्ट की तरफ डेज ऑफ वीक्स बताए गए हैं और आपके राइट की तरफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताई गई हैं कि किस डे में कितनी चॉकलेट जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन ने खाई है। इसके हिसाब से आपसे कुछ सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफ को पढ़ते हैं। मंडे में कितनी चॉकलेट्स हैं? 4। ट्यूसडे में कितनी चॉकलेट्स हैं? 7। वेडनेसडे में कितनी है? 4। थर्सडे में 1 और फ्राइडे में 9 चॉकलेट्स हैं। नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स आर ईटन ऑन थर्सडे?
The answer is 1. On which day were the most chocolates eaten? On Friday. On which 2 days were the same amount of chocolates eaten? बताइए इस ग्राफ से देखते हुए किन 2 डेज में सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स जो है वो खाई गई हैं? Monday and Wednesday. Yes. This is all about your review exercise and your English books. I hope so. Yes, इस बुक की तमाम ट्रांसलेशन, इसकी एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और अब इस तरह के मिलते जुलते सवालात उस एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।